The topic at hand is stress, and we're going to discuss what stress is, how does it come into action, what are the different stressors, what is the body's response when a person is facing stress. So we're going to start from defining stress. Stress is basically a negative emotional experience which is accompanied by predictable biochemical, physiological, cognitive, and behavioral changes that are directed either towards altering the stressful condition or event or accommodating to its effects. यानी कि there are two ways to face stress. Either you will alter the condition, या तो आप वहाँ से like fight or flight response होगा आपका either, या फिर आप उसके जो effects होंगे उसके साथ accommodate करेंगे, adapt करने की कोशिश करेंगे, अपनी adjustment उसके accordingly करेंगे. Now dividing the definition into different parts to make it easy to understand. First of all, it is a negative emotional experience. Negative emotional experience का मतलब ये है कि the emotions that you will experience during stress, they will be negative in the effect. यानी कि you won't feel happy in stress. You're supposed to feel sad. यानी कि आपके जितने भी emotions, emotional आप continuum की बात करें, जो भी dimensions होती हैं वो सारी जो negative emotions की होती हैं आप वो emotions experience करेंगे. Now they are accompanied by predictable biochemical, physiological, cognitive and behavioral changes. यानी कि एक stressful condition में one person can predict कि एक stressful condition का असर किस तरीके से एक इंसान पे होगा, उसके biological changes किस तरीके से होंगे, उसका biochemical balance किस तरह से disturb होगा, उसके behavioral patterns किस तरह से change होंगे और उसकी understanding यानी कि उसकी cognitions में किस तरह से changes आएंगे. For example, आप daily life में देखें तो आपकी stress is being stopped by a police officer after accidentally running a red light. It is waiting to take a test when you are not sure that you have studied enough or studied the right material. It is missing a bus on a rainy day full of important appointments. And it's not necessarily कि आपका जो स्ट्रेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या उसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इफेक्ट है. इट कैन बी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो, जिसकी वजह से आपको कोई भी नेगेटिव इमोशनल फीलिंग को इमोशन को फील करना पड़े या उसको फेस करना पड़े, या फिर आप किसी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना पड़े जो कि आपके लिए नेगेटिव है या इन योर ओपिनियन इट इज नेगेटिव. Now, stress is something that is a response to stressors. Stressors जो होते हैं वो उस तरह के triggers होते हैं, वो stimuli होते हैं जो कि आपकी body के जो predictable responses हैं subject to stress उनको trigger करते हैं. For example, people report that money, economy, work, family health problems and family responsibilities are their top 5 stressors. यानी कि people have identified a few stressors या ऐसी बातें, ऐसे events, ऐसे factors जो उनके लिए stressful हैं उनकी life में. But हो सकता है कि एक इंसान का stressor जो है वो दूसरे इंसान के लिए stressful ना हो. For example, family responsibilities. If you are a sole bread earner of a family and you have to support all of the family members, in any case आपका economic downfall जो होगा उसकी वजह से आपके ऊपर जो असर आएगा, it will be very much stressful for a person who has to support a family. ठीक है. इसके बरक्स वो इंसान जिसने अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना, उसके लिए वो उस शिद्दत की स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होगी. ठीक है. तो इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग. एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव. इसी तरह से अब हम स्ट्रेसर को किस तरह से अप्रेज करते हैं, यानी कि अप्रेजल का मतलब ये है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रेजल्स, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल तब होता है कि जब एक इंसान इवेंट को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि व्हाट द इवेंट इज और इसका क्या मतलब है, यानी कि व्हाट इज द सर्कमस्टांस ऑफ दिस, या सॉरी व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. इवेंट्स मे बी अप्रेज्ड फॉर देयर हार्म, थ्रेट और चैलेंज. यानी कि हम 3 डायमेंशंस में 3 चीजों को कंसिडर करते हुए स्ट्रेसर्स को का अप्रेजल करते हैं. Now, harm is the assessment of the damage that has already been done. यानी कि anything that has been altered, वो आपके accordingly कितना ज्यादा damage हो चुका हुआ है. For example, being fired from a job. Threat is the assessment of possible future damage. यानी कि आप जब anticipate कर रहे हैं कि what can happen in the future, या एक particular जो आपने harm assess कर लिया
उसके बाद आप मजीद असेस करते हैं कि आगे किस किस तरह के थ्रेट्स हैं, आप क्या क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप थ्रेट को असेस कर रहे हो या यू आर एंटिसिपेटिंग अ पर्टिकुलर थ्रेट अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद हार्म का फैक्टर है लाइक दीज थिंग्स आर नॉट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ये आगे पीछे होते हैं. But events may also be appraised in terms of their challenge, that is, the potential to overcome or even profit for the event. For example, a man who lost his job may regard his unemployment as an opportunity to try something new. यानी कि उसने एक चैलेंज समझ के उसको एक चैलेंज के तरीके से उसको असेस किया है, उसको स्ट्रेसर की बजाय एक चैलेंज की तरह अप्रेज किया है, एंड इट विल लीड टू द पर्सन फाइंडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एंड इट कैन एक्चुअली लीड टू द पर्सन बैगिंग अ वेरी गुड जॉब, यानी कि वो उसके लिए फेवरेबल भी हो सकता है. तो challenge assessments lead to more confident expectations that one can cope with, a more favorable emotional reaction to the event and lower blood pressure among other benefits. अगर हम इसको थोड़ा सा personality types के साथ करें तो जो आपकी resilient personality type होती है, जो मैंने पहले भी एक दफा mention किया हुआ है, resilient people they generally appraise stressors as challenge assessments, यानी कि वो जब primary appraisal करते हैं they take those things as challenges. जब वो challenge के तरीके से लेते हैं तो they do not feel that a lot of damage has been done to them. Secondary appraisals इसके बाद है, they assess whether personal resources are sufficient to meet the demands of the environment. यानी कि primary appraisal में आप check कर रहे हैं कि what has happened and what does it mean. ठीक है, you are assessing the harm or the threat or the challenge. जो आपका primary appraisal के बाद secondary appraisal है, जो second stage है आपके appraisal की, that basically makes a person identify the personal resources. ठीक है, कि उसके पास क्या इतने resources हैं कि वो इसको अगर as a challenge ले रहा है तो वो किस तरीके से उस challenge को meet करेगा. अगर उसको if the person feels कि if the person has this idea कि किसी किस्म का threat है उसके environment में जिसकी वजह से उसको कल को stress face करना पड़ सकता है, तो क्या उस stress को combat करने के लिए उसके पास does the person have enough resources. इसी तरह से अगर if harm has been done तो उसके साथ cope किस तरह करना है, वो भी secondary appraisals में आप अपने देखेंगे कि what are your resources, are they enough to meet the demands or not. Now, when a person's resources are more than adequate to deal with a difficult situation, he or she may feel a little stress and experience a sense of challenge instead. When the person perceives that his or her resources will probably be sufficient to deal with the event, but only with a lot of effort, he or she may feel a moderate amount of stress. लेकिन अगर इसी तरह से एक इंसान परसीव करता है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो नाकाफी हैं एक चीज को डील करने के लिए, एक स्ट्रेसर को डील करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो स्ट्रेसफुल होगी कंडीशन. सिंपली अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं कि जो आपका सेकेंडरी अप्रेजल है वो आपके रिसोर्सेज की असेसमेंट करता है कि डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट और टू फेस द पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अगर आपके रिसोर्सेज आपकी डिमांड से ज्यादा हैं उस सिचुएशन को डील करने की, देन यू विल फील वेरी लिटिल स्ट्रेस. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपनी एफर्ट डालनी है और वहां पे आप चैलेंज असेसमेंट कर रहे होंगे. If you have sufficient amount of resources, personal resources to deal with it, you will be subjected to little stress. ठीक है, little or moderate stress. जब आप आपके पास resources ना काफी होते हैं तो it subjects you to immense stress. अब इसके अंदर एक और फैक्टर जो आता है उसे कहते हैं person environment fit. It results from the process of appraising events, of assessing potential resources and of responding to the events. Now it is very possible कि आप ये भी appraise कर लें कि the situation is stressful, आप अपने secondary appraisal के through अपने resources भी assess कर लें, but if your response to the particular event, to the particular situation is not channelized in the correct manner, अगर उसकी आप जो strategy build up करते हैं उसको combat करने की अगर वही आपकी ठीक नहीं है, वो faulty है, तो it will subject you to more than expected stress जो उस particular event के against होना चाहिए. अब इसके अंदर हमारे बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो दो तरह के होते हैं, either it's fight or it's flight. यानी कि आपकी बॉडी का एक जो कॉमन रिस्पॉन्स है जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जब आप कोई थ्रेट असेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो होती है, यानी कि when an organism perceives a threat, the body is rapidly aroused and motivated via sympathetic nervous system and the endocrine system. This concerted physiological response mobilizes the organism to attack the threat or to flee. Hence, it is called
फाइट और फ्लाइट, यानी कि आप एक टाइम पे जब अपना असेस करते हैं कि सिचुएशन जो है वो स्ट्रेसफुल है, उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स जो है वो या तो फाइट होता है या फिर फ्लाइट होता है. At one time, fight or flight literally refer to fighting or fleeing in response to a stressful condition. यानी कि जिस तरह हम एनिमल बिहेवियर में देखते हैं, वहां पे प्रे और प्रेडेटरी का रिलेशन जो है, पहले इसको लिटरल इसी टर्म में लिया जाता था कि ह्यूमंस इन फेस ऑफ एनी स्ट्रेसफुल इवेंट भी उसी तरीके से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं. बट नाउ fight refers to aggressive responses such as getting angry or taking an action, whereas flight is reflected in social withdrawal या फिर withdrawal through a substance, या फिर आप distance उसे इख्तियार कर लें. यानी कि जो particular stressor है, या तो आप उसको फेस करेंगे, उसको उसकी वजह से एजिटेट होंगे, एग्रेसिव होंगे, एक्शन लेंगे, या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करेंगे, जो कि जनरली उस सिचुएशन से दूर हो जाना है, विदड्रॉ कर देना है, या फिर कोई एक ऐसा सब्सटेंस ले लेना है, कोई ऐसी मेडिसिन ले लेना है, कोई ऐसा रिलैक्सेंट ले लेना है जो आपको टेम्पररी तौर पे उस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर दे. On the other hand, the fight or flight response is adaptive because it enables the organism to respond quickly to a threat. And it can be harmful because stress जो है disrupts the emotional physiological functioning, and when the stress continues unabated, it lays the groundwork for health problems. मैंने पहले भी ये बात describe की थी कि health psychology का main area जो है, जो main उसकी domain है, that basically focuses on how stress produces permanent physiological diseases, and जो आपका chronic stress होता है वो किस तरीके से आपकी body के अंदर physiological changes लेके आता है. तो if we talk about stress, तो stress अगर continuously एक इंसान जो है वो he is being subjected to stressful conditions and situations in such a सिचुएशन उस बंदे का, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा, अराउजल स्टेट में वो मुसलसल रहेगा, आपकी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स की आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, आपका केमिकल इम्बैलेंस होगा, एंड जनरली स्पीकिंग आपकी बॉडी जो है वो वेयर एंड टेयर में जाएगी. यानी कि आप सिंपली स्टेटिंग, कोई एक चीज है, कोई एक मशीन है जिसको आप मुसलसल अगर चलाते रहेंगे, तो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली उसकी जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो स्पार्क कर सकता है, वो हीट अप होकर बंद हो सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक मशीन जो है वो जब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यूज की जा रही हो, कॉन्टिन्यूसली यूज की जा रही हो, तो इट कैन रिजल्ट इन फॉल्ट्स. ठीक है, इसी तरह से योर ह्यूमन बॉडी जब वो सब्जेक्ट टू स्ट्रेस होती है और अराउजल स्टेट में हर टाइम रहती है, तो फिजियोलॉजिकल डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज योर ऑर्गन्स आर कॉन्टिन्यूसली इन स्ट्रेस. सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी ये है कि बहुत से लोग जिस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, दे आइदर स्टार्ट गेटिंग अ हेडेक, उनका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, उनके शुगर लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, या फिर दे स्टार्ट हैविंग स्टमक डिस्टर्बेंसेस, या फिर उनको नॉर्मल पेन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, या उनको वो नॉशियस हो जाते हैं, डिजी हो जाते हैं. दीज आर कॉमन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं. How does stress contribute to illness? जिस तरह मैंने अभी ये बात बताई है कि एक तो तरीका ये है कि जिस टाइम पे स्ट्रेस है, आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप उसकी वजह से हो रहे हैं. इसके अंदर एक और फैक्टर जो आता है विच इज नोन एज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मेंशन की थी कि आपका एक जीनोटाइप होता है जो कि आपके डीएनए के अंदर इंक्रिप्टेड होता है. वो जीनोटाइप जिस टाइम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सप्रेस हो जाता है आपके अंदर, तो वो फिनोटाइप बन जाता है. नाउ व्हेन अ जीनोटाइप इज प्रेजेंट, इट मींस कि यू आर प्रीडिस्पोज्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ पर्टिकुलर कंडीशन, और जब उसको सिचुएशन मिलेगी, एनवायरमेंट मिलेगी, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा. इसी तरह से पीपल the way they combat stress, the way they cope with stress, जिस तरह से वो अपने स्ट्रेसर्स को हैंडल करते हैं और उसका इफेक्ट लेते हैं, ये भी काफी हद तक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होता है. नाउ अ पर्सन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज वेरी मच लाइकली कि वो जिस टाइम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा तो वो भी हाइपरटेंसिव होना स्टार्ट हो जाएगा. और जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, जिस तरह मैंने अभी बताया था कि आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, चेंजेस इन लिपिड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर चेंजेस. अब इनको मजीद हम थोड़ा सा देखते हैं. अब सेकंड जो इसका एक तरीकाकार होता है जो हेल्थ को अफेक्ट करने का होता है, वो ये है कि पीपल हु लिव विद क्रॉनिक स्ट्रेस हैव पुअरर हेल्थ हैबिट्स देन पीपल हु डू नॉट. And acute stress, even when it is short term,
often compromises health habits. Simply stating, आपको अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल हैं, आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्मोकर, तो क्या होगा कि आप उस काम को करने के लिए जो अपने आप को स्ट्रेस में रख रहे होंगे, आप उस चीज़ को कोप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर अगर आप जिस तरह हम नॉर्मली चाय जो पीता है उसको चाय ज़्यादा पीने का हो जाता है, कोई इंसान अगर या सिंपली सेइंग अगर आपने कोई गोल अचीव करना है, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रेसफुल टास्क फॉर यू, आप उसके ऊपर यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, आप कंटिन्यूसली अपना अराउजल स्टेट में है, उसकी वजह से यू विल इग्नोर योर हेल्थ हैबिट्स। आप अपनी हेल्दी ईटिंग को इग्नोर कर सकते हैं, आप हो सकता है कि कंटिन्यूसली लॉन्ग सिटिंग करें, हो सकता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के एनवायरनमेंट में मौजूद हो जो कि हेल्दी ना हो सकता है आप लेट आवर्स दे रहे हो, लेट नाइट जाग के काम कर रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स along with the stressful condition, along with the physiological arousal, जब ये चीजें साथ में कपल अप हो जाती हैं, जब ये चीजें भी साथ में मिल जाती हैं, तो आपके हेल्थ कंडीशन जो है वो और ज्यादा डिटेरिएट होती है। Now, poor health habits can include smoking, poor nutrition, little sleep, little exercise, and use of substances such as drugs and alcohol. Over the long term, each of these poor health habits can contribute to specific illnesses. For example, smoking can cause lung diseases. Even in the short term, changes in these health habits may increase physiological vulnerabilities and set the stage for longer term adverse health outcomes. यानी कि आपका अगर chronic stress है या आप किसी ऐसे ट्रॉमेटिक किस्म की सिचुएशन से गुजरे हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल था, उस टाइम जो वेयर एंड टेयर आपकी बॉडी का हो गया, जो फिजियोलॉजिकल डैमेजेस हो गए, दे कैन लीड टू फर्दर हेल्थ इश्यूज और इलनेसेस और डिजीजेस, मतलब आपकी एक तरह से लॉन्गविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। Thirdly, ये कि stress affects psychosocial resources in ways that can adversely affect health. यानी कि आप जिस टाइम पे स्ट्रेस में हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, उस टाइम पे आपके जो फॉर एग्जांपल योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, your peer group, the people you're working with, आपका work group जो होता है immediate, now these are your social contacts, इनको social contacts कहा जाता है। Now if they are the people who care for you and they are protective of your health, ठीक है, तो उस तरह की चीज को आप अवॉइड करते हैं। इवन दो इफ यू हैव अ वेरी हेल्दी सर्कल, इफ यू हैव अ वेरी हेल्दी पेयर ग्रुप, आप अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो आप उनको अवॉइड कर रहे होते हैं बिकॉज यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, और उस चीज की वजह से आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को या तो अवॉइड कर रहे होते हैं या फिर आप इस तरीके से बिहेव करते हैं जो उन लोगों को आपसे दूर कर देता है, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड आउट एंड इट इज बेसिकली आपकी मैल अडेप्टिवनेस हो रही है, आपको कोप करना नहीं आ रहा, you're not able to adjust with the changes or the stressors, जिसकी वजह से आप अपने social contacts को या तो withdraw कर रहे हैं या फिर you are driving them away. Now when this kind of a thing happens, आपके psychosocial resources जो होते हैं, जो आपको support मिलनी होती है from your peer groups, from your family, जो आपको एक empathetic support मिलनी होती है, social and moral support, emotional support, आप अपने आप को उन सब चीजों से महरूम कर देते हैं। And when that happens, it also has an effect on your health. यानी कि उसके अंदर मजीद आपके जो पर्सनल कंट्रोल जो होता है, जो आपके पर्सनल रिसोर्सेज के अंदर साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज होती हैं, योर ऑप्टिमिज्म, योर सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, दीज आर द थिंग्स आर आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, आप फौरन से लैश आउट करके एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू हो जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन सच अ कंडीशन? आइदर यू कैन हार्म योरसेल्फ or you may harm another person that you are combating or who you are facing. आपको socially damage कर सकती है इस तरह की activity if you have little or no self control. To the extent that time, money and energy must be put into combating the stressor, these external resources are compromised as well, falling especially hard on people who have very little of those resources. Now, आपकी जो psychosocial resources होती हैं, if you are not prompt in coping with it, तो आपके लिए ये भी एक आपके लिए further आपकी health को deteriorate करने का होता है। Fourthly, जिस तरीके से आपको स्ट्रेस अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, उसमें ये है कि यूज ऑफ हेल्थ सर्विस एंड अडहेरेंस टू ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस। आप अपने आसपास देखें, आप अपने पेरेंट्स को देखें, आप अपने एल्डर्स को देखें,
Whenever anything happens, minor सी inconvenience होती है, they try to self-medicate, they try to avoid going to the doctor, they try their best to just manage it temporarily और बाद में वो उसको देख लेंगे. In such kind of a situation, what happens is कि अगर आप नहीं कंसल्ट करें स्पेशलिस्ट को, या फिर अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं और आप इसके ट्रीटमेंट प्लान के साथ नहीं सही तरीके से चल रहे, तो what happens is कि they या तो दे डिले सीकिंग केयर फॉर द एनीथिंग दैट इज बीइंग हैपनिंग, या फिर ये होता है कि वो बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की केयर नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशंस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं. नाउ दीज आर द 4 रूट्स जिससे यानी कि एक आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो चेंज होती है, आपके हेल्थ बिहेवियर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं, आप अपनी साइको सोशल रिसोर्सेज को किस तरह से क्या कहते हैं, किस तरह से अपने आप से दूर करते हैं और किस तरह से अपने हेल्थ केयर सिस्टम को यूज नहीं करते. दीज आर द 4 पाथवेज जिस तरीके से स्ट्रेस जो है वो आपकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है. Moving on, this is a small flowchart जो कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मजीद हेल्प कर सकता है. It can revise the whole concept till now that the environmental demands in our situations, in our circumstances, they subject us to stress. जिस टाइम हम उनकी appraisal करते हैं तो उसके अंदर या तो आप stress को जिस तरीके से perceive करते हैं वो आपको एक negative emotion देता है. Now, when the negative emotion is felt, it leads to physiological arousal and healthy behaviors or unhealthy behaviors. This time पे आपको इस तरह का physiological arousal या फिर आपके health behaviors में issues आते हैं, it increases the risk of either a physical disease or psychological disorders. Now, physiological arousal जो है वो आपका linked है appraisal से, आपके personal resources की appraisal से, ठीक है. आपको जो ये इसी तरह से आपके अप्रेजल से भी लिंक्ड है. इफ यू अप्रेज देम इन टर्म्स ऑफ थ्रेट एंड हार्म, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि आप उनको स्ट्रेस परसीव करें. एंड अनदर थिंग कि अगर आपके जो रिसोर्स असेसमेंट है वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो रही है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड हेल्थ बिहेवियर इश्यूज, और आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली उसको परसीव करेंगे. Now, this is another flowchart that basically summarizes the physiological resources and physiological effects and how things change. In case subject to stress, your physiological effects are elevated lipids, elevated blood pressure, decreased immunity, increased hormonal activity. Then जो आपके health behaviors change होते हैं उसके अंदर increase smoking, alcohol use, decreased nutrition, decreased sleep, increased drug use, poor diet and little exercise. आपकी psychosocial resources के अंदर threatened social support आती है, आपकी reduced optimism, threats to self-esteem and lower sense of mastery, यानी कि you generally assess that you do not have any control of a particular situation. And fourthly, healthcare, decreased adherence to treatment, increased delay in seeking care, obscured symptom profile, decreased likelihood of seeking care. Now, यहाँ पे I would like to add that जिस time आप delay करते हैं care, मतलब medical facilities या healthcare system को approach करने में, जिस तरह आप delay करेंगे उतना ज़्यादा damage जो है वो आपको physiologically हो जाएगा या फिर psychologically हो जाएगा. तो it's better whenever subject to stress, you have to try and approach your healthcare facilities as soon as possible. जिस time वो आपके control से बाहर होना start हो जाए. Now, moving on, आपके stresses जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, either external or internal. External का मतलब ये है कि they are going to arise from your external environment, and internal का मतलब ये है कि वो आपके internally यानी कि from within arise करेंगे. External के अंदर deaths आती हैं, injuries, illnesses, relationship breakdowns, being a victim of crime, retirement, abuses इसके अंदर आ जाते हैं, traumatic situations आ जाती हैं, accidents आ जाते हैं, इस तरह के stresses जो आपके external हैं. Then internal में आपके expectations, demands, misperception या apperceptions, assumptions, fear and anger. Now these are the 2 categories जो आपके stressors की होते हैं, external from the external environment and internal from within. We're going to discuss what are the different stressors. First of all, daily आपका जो stress होता है यानी कि जो daily आपके hassles हैं, जो आपके रोजमर्रा की activities हैं उसके अंदर जिस तरह से आप traffic में फंसे हुए हैं तो you are being subjected to stress. आपको कहीं पे पहुंचना है, आप delay हो रहे हैं, late हो रहे हैं, उसकी वजह से आप stress में हैं. हो सकता है आप घर के काम करने के अंदर because you have to manage your time, you have to manage your activities in a very good manner, in an efficient, effective way.
हो सकता है उसकी वजह से हो, या फिर सिंपली आप डिसीजन मेकिंग के अंदर यू हैविंग डिफिकल्टी, दैट कैन कॉज यू स्ट्रेस एज वेल। यानी कि डेली माइनर प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एडवर्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल सिम्टम्स एंड द यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको एकदम से बहुत किसी चीज की कोई खबर ऐसी मिलती है, आप न्यूज टीवी देख रहे होते हैं और इस तरह की होता है, यू गेट स्ट्रेस्ड आउट टू व्हाट इज दिस, ठीक है। एंड समथिंग जैसे होता है कि आपके पर्सनल लाइफ इवेंट्स इस तरह के होते हैं दैट इट फोर्सेस यू टू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेंट टू just to avoid any physiological after effects of the stress that you are being subjected to. आपके जो लाइफ इवेंट्स होते हैं ना, दे कैन बी स्ट्रेसफुल एज वेल। फॉर एग्जांपल आपके किसी लव्ड वन की, किसी करीबी रिश्तेदार की, आपके पेरेंट्स की, अल्लाह ना करे आपकी इमीडिएट फैमिली में से किसी की जब डेथ हो जाती है, या इस तरह का कोई भी मसला आता है, डाइवोर्सेस हो जाती हैं, इस तरह की स्पाउस की डेथ हो जाती है, दीज आर द थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं ये, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। नाउ ये भी हो सकता है कि किसी इंसान के लिए किसी की डेथ हो जाना उसके लिए स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है कि किसी की गाड़ी कहीं पे लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो उसके लिए स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है कि किसी इंसान के लिए बहुत जो उसकी डेली लाइफ रूटीन हो, जो उसकी वर्क लाइफ हो, जो उसकी वर्क रूटीन हो, वो उसके लिए स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट बन जाए। सो दीज लाइफ इवेंट का मतलब ये है कि इट विल बी समथिंग दैट विल बी डिस्टरप्टिंग योर लाइफ एंड कास्टिंग अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर लाइफ, ठीक है। यानी कि आपको उसके हो सकता है कि आपको उसके फ्लैशबैक्स आए, या उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आपके आने वाली लाइफ पे, आपके आने वाली लाइफ के इवेंट्स पे, सक्सेसिव इवेंट्स पे उसका असर हो। Now, all the scores on life event inventories predict illness. The relation is quite modest. First, some of the items on the list are vague. Many there are simple research methods के through different ratings develop की गई थी कि किस तरीके से different life events जो हैं वो किस तरह से आपको stressful आपका फिजियोलॉजिकल होता है, किस तरह से अराउजल होता है, हाउ डज दिस हैपन। तो उन इन्वेंटरीज के ऊपर थोड़ा सा कहा गया हुआ है कि बिकॉज इवेंट्स हैव प्री-साइन पॉइंट वैल्यूज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके अंदर अकाउंट नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी इंसान की डाइवोर्स हो रही हो तो वो किसी के लिए स्ट्रेसफुल इवेंट हो, और किसी के लिए हो कि द पर्सन इज वेलकमिंग फ्रीडम एंड बस ठीक है, वो किसी और के साथ मजीद अपना लाइफ इमेजिन करना चाहता हो, या हो सकता है कि उसका अपना जो इट कैन लीड टू अ डीमीनिंग लाइफ स्टैंडर्ड, या फिर अ कोलैप्स इन सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज्यादा आता है कि आप लाइफ इवेंट्स को एज स्ट्रेसर अप्रेज करते हैं या नहीं करते। नाउ इनमें आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के अंदर आपके पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड पीपल, यानी कि आपने जो बेसिकली जो इसके ऊपर रिसर्च की गई थी उसके अंदर दो डोमेन्स बनाई गई थी, पॉजिटिव भी इवेंट्स थे उनके अंदर, नेगेटिव भी थे, एंड पीपल वर सपोज्ड टू चूज व्हाट इवेंट्स आर स्ट्रेसफुल फॉर देम। फॉर एग्जांपल such as getting married, events that simply happen, such as death of a close friend, as noted। अब जो सडन नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं, नाउ दे आर वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे विल बी स्ट्रेसफुल, ठीक है। लेकिन इस वजह से इसमें यहाँ पे पॉजिटिव इवेंट्स को आप इंक्लूड करने की जरूरत उस तरह से नहीं होगी। Now, fourthly, ये कि researchers जो होते हैं, they typically do not assess whether stressful events have been successfully resolved or not। ये तो आप समझ आ गई आपको कि पर्टिकुलर लाइफ इवेंट जो है ये स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट वही वाली बात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्ले अ रोल ओवर हियर। हो सकता है कि वो एक लाइफ इवेंट जो एक बंदा जिससे गुजरा है उसको वो सक्सेसफुली मैनेज कर चुका हो, उससे कोप कर गया हो, एंड नाउ दैट पर्टिकुलर लाइफ इवेंट इज नॉट स्ट्रेसफुल फॉर द पर्सन, इट्स नॉट स्ट्रेसफुल फॉर द पर्सन टू थिंक अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म उस टाइम पे फेल कर गया, इफ यू वर नॉट एबल टू सक्सेसफुली रिजॉल्व द प्रॉब्लम, देन यस इट माइट बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। Now, many people believe that stress causes illness, and so if they have been ill, they may remember more events in their lives as having been stressful। यानी कि अगर आप physiologically वैसे ही थोड़े कमजोर हैं, you have been subjected to illness in your life, you will be feeling stress more than a usual normal person जिसको life में कोई कभी किसी तरह की illness नहीं। मूविंग ऑन, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किस तरह से वर्क एनवायरनमेंट, वर्क स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेन जो होते हैं वो किस तरीके से आपको मजीद जो है वो फिजिकल इलनेसेस की तरफ लेके जाते हैं, या फिर हाउ दीज बिकम स्ट्रेसर्स। नाउ स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस, now there are different reasons of workplace
हम क्यों इसको कंसिडर करते हैं कि इट इज अ वेरी जेन्युइन स्ट्रेसर. एक तो ये कि दे हेल्प आइडेंटिफाई सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेसर्स ऑफ एवरीडे लाइफ. नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर वर्क, व्हेन यू आर वर्किंग एट सम प्लेस, यू आर स्पेंडिंग अ चंक ऑफ योर लाइफ ओवर देयर, ठीक है. एंड व्हेन you spend this much considerable amount of time somewhere, it must be having an impact on your life. ठीक है. So they provide evidence for stress illness relationship. Work stress may be one of our preventable stressors and so provide possibilities for intervention. यानी कि the statement basically suggests कि work stress को avoid किया जा सकता है. Stress-related physical and mental health disorders account for a growing percentage of disability and social security payments to workers. हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है, बट व्हेन यू गो अब्रॉड, व्हेन यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे आपको प्रॉपर जो हेल्थ कवरेज और आपको जो इंश्योरेंस दी जाती है उसके अंदर यू आर अलाउड टू क्लेम एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इंजरीज दैट हैव बीन डन टू यू बिकॉज ऑफ योर पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है. उसकी वजह से जो आपका अगर वर्क स्ट्रेस ज्यादा होगा तो आपकी ऑब्वियसली जो कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पे ऑफ ज्यादा करना पड़ेगा, उनको लिटिगेशन का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, सूट्स उनको ज्यादा होंगे, उनको जो यानी कि उनको लॉ परसुएट्स और लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे. सो इफ दे वर्क ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस, वो इन सारे मसलों को अवॉइड कर सकते हैं एंड दे विल हैव सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज एज वेल. Now, work and sedentary lifestyle. The most common work that people undertook before the industrial revolution was agriculture production, जिसके अंदर आपको अब जो किसान है उसको फिजिकली काम करना पड़ता था. बिफोर जब आपकी मशीन्स और इंडस्ट्रीज जिस टाइम पे बूम की हैं उससे पहले. As people have moved into sedentary office jobs, the amount of exercise they get in their work lives has declined substantially. यानी कि people are generally just glued to their chairs and their tables. वो 9 to 5 jobs कर रहे हैं, ऑफिस जॉब्स कर रहे हैं. They do not have much exercise to do. अब जिस तरह हमने देखा है कि जब आपके पास ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आप फिजिकली अपने आप को एक्सर्शन में नहीं लेके जा रहे, तो what happens is कि आपकी जो टाइम जो आपका एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, that is not being done. तो उसकी वजह से आपके एक्टिविटी लेवल जब डिक्लाइन कर रहा है तो आपके हेल्थ इश्यूज भी उसी तरह से इंक्रीज होंगे. बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन 9 to 5 जॉब, आप उसके बाद किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करेंगे और एक्सरसाइजेस को, उन सब चीजों को मैनेज करेंगे. दिस बेसिकली इंक्रीजेस अ वल्नरेबिलिटी टू इलनेस. यानी कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वर्क लाइफ की वजह से इट इज सब्जेक्टिंग अस टू इलनेस. ओवरलोड. अब वर्क ओवरलोड यानी कि जिस टाइम आपको बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत कम टाइम में करना है और आपको मुसलसल लोड किया जा रहा है, देन इट प्रोड्यूसेस हाई लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क टू लॉन्ग एंड टू हार्ड. बहुत ज्यादा उनको काम करना पड़ता है. जिस टाइम वो बहुत ओवरलोड में होते हैं, उनकी हेल्थ हैबिट्स जो हैं वो खराब होती हैं. दे आर मोर एट रिस्क. ठीक है. एंड उन लोगों से के बजाय जो कि यानी कि दे आर इन क्रॉनिक स्ट्रेस ऑल द टाइम. हर टाइम उनकी बॉडी एक्टिवेटेड है, देयर इज फिजियोलॉजिकल अराउजल, उनकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिवेशन हुई है, जिसकी वजह से जो ओवर कमिटमेंट है और जो ओवरलोड है, इट कैन कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. एम्बिग्युइटी एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट. जिस टाइम आप काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो आपका अप टू द मार्क है या नहीं है, उस टाइम पे आपकी रोल एम्बिग्युइटी होती है. यानी यू डू नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि आपको अपने पर्टिकुलर काम को में करना क्या है, किस तरह से करना है. एंड रोल कन्फ्लिक्ट उस टाइम पे होता है जिस टाइम पे आप एक पर्टिकुलर काम करने के लिए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस मिल रही होती हैं और आपके लिए कन्फ्लिक्टिंग एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि किसने किस तरह से क्या काम करना है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलेज का कोई टीचर बताता कि आपके किसी कॉलेज में आपको, okay, let's not discuss this example, let's discuss an example that you can relate with. आपको फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास अटेंड नहीं की, आपको एक स्टूडेंट बताता है कि मैम ने कहा है कि मंडे को हमारा क्लास टेस्ट होगा. ठीक है. आपको 2-4 टॉपिक्स बताए उन्होंने एंड यू वर लाइक ओके ठीक है, मुझे इसकी तैयारी करनी है. आपको एक और फ्रेंड मिलती है तो आगे से वो कहती है नहीं मैम ने ये टॉपिक्स तो नहीं कहे, ये हमें सारा नहीं करना, इसमें से ये चीजें सिर्फ करनी है. फिर यू डिस्कस दिस विद अनदर पर्सन और वो आपको कहते हैं कि नहीं मैम ने टेस्ट, अच्छा मैम ने टेस्ट भी कहा है ना. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपने किस तरह किससे क्या करना क्या है आगे. नाउ इट इज creating a confusion for you. It is a conflicting situation. लोगों के opinions जो हम आपस में मैच नहीं करी, जिसकी वजह से आपको इस तरह से
कंफ्यूजन की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो होगा, राइज करेगा। इन सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि जिस टाइम पे आप किसी सिचुएशन में किसी इसको हम जरा सा वर्क लाइफ से अलग करके भी देखते हैं कि जिस टाइम पे आप अपने हेल्थी सोशल रिलेशनशिप्स नहीं स्टैब्लिश करते तो आप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि आपकी जो सोशल रिसोर्सेज है या सोशल साइको सोशल रिसोर्सेज है वो डिक्लाइन में जा रहे हैं। यानी कि आपका अगर लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है तो इट विल increase your risk of being in a stressful condition. To the degree having अगर हम वर्क लाइफ में बात करें तो अगर आपका अच्छा नहीं है ताल्लुक अपने कोवर्कर्स के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, एंड इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड हार्ट डिजीजेस. Now, social relationships not only combat stress in their own right, they also buffer other job stresses such as low control over one's work. यानी कि अगर आपकी हो सकता है आपकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो लेकिन आपके सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो ठीक ना हो, लेकिन तो जब आपके सोशल रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होते तो इट कैन लीड टू अदर थिंग्स दैट बिकम स्ट्रेसफुल फॉर यू, जो कि जनरली नहीं होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो चीजें जिन लोगों के साथ लिंक्ड है उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुक नहीं है। तो अब जनरली हमने इस वक्त जो आपके डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं उनके अंदर आपके ये आ रहे हैं कि एक तो आपका डेली स्ट्रेस है, देन स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, वर्क प्लेस स्ट्रेस जिसके अंदर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, आपका ओवरलोड आ जाता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्विटी आ जाती है, एंड आपके डिक्लाइंड सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं।